Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. So Kirit Bhai ji will talk about career. He will talk about the ups and downs in career, and he says that since he is a very jovial and not so serious person, he calls the person who has ups and downs as Jhulelal, which means someone who is sitting on a seesaw and goes up and down. So he sees this as an inevitable part of life, and he's going to explain through Nadi, since he's a master of Nadi, he will explain through Nadi how career stuff works. Yeah, it is also, you can consider it as a seesaw or a swing on which a person is sitting and things go up and down. And how to see these ups and downs in career, Kirit Bhai ji will tell us. तो यहाँ पर जब हम किसी का भी जो है कामकाज का फोकस करते हैं तो पहले हम शनि को फोकस करेंगे. So when we talk about career, we focus on the planet Saturn. अब शनि के हिसाब से शनि जो है वो कामकाज का कारक है, और जब हम काम करेंगे, हाँ, Saturn is the karaka for career. तो जब हम काम करेंगे तो नेचुरली जो है हमको पैसे आएंगे, तो शुक्र वहां पर कनेक्शन में आ जाता, पैसे का कारक है. So by doing work we achieve money. So automatically Venus Shukr becomes the karaka for money and Saturn is the karaka for our work. वहां पर बुध जो है वो काल पुरुष का तीसरा भाव है और छठा भाव है, तो छठे भाव से हम जॉब को भी देखते हैं और तीसरा भाव हम कम्युनिकेशन को भी देखते हैं, और बुध जो है वो व्यापार का भी कारक है. Mercury rules third house and sixth house in the natural zodiac in the Kal Purush Kundali, and from this we can see the work as well as communication. तो जब हम करियर की बात करेंगे और किसी अच्छे सक्सेसफुल इंसान की बात करेंगे तो वहां पर जो है आपको शनि, बुध, शुक्र और राहु जो एक्सपांड का कारक है, ये आपको अच्छी स्थिति में मिलेंगे. When we talk about success in career, then we have to see the people's chart who have succeeded. They will have Saturn, Mercury, Venus, and also Rahu for the purpose of expansion. All these planets will be in good position. But your volume is very low volume. Okay. Saturn, Mercury, Venus, Rahu, these will be in good position if the person has success in career. Is it better now, sir? Okay. देखिए वहां पर जो है जब हम पाराशरी लेते हैं या वैदिक लेते हैं तो हम गुरु को वृद्धि का कारक बोलते हैं कि गुरु. हाँ. Yeah. So when we look at the charts, we see Jupiter as the karaka, as the causal factor for growth. मगर नाड़ी में हम जो है राहु को कंसीडर करते हैं. In Nadi astrology, instead of Jupiter, we consider Rahu as the causal factor or karaka for growth. वो एक्सपांड करता है. Rahu expands. करता है. कद जो है उसका बड़ा कर देता है. Rahu expands things, magnifies things, grows them. तो जब भी किसी इंसान की कुंडली में, आप किसी भी इंसान की कुंडली में देख लो, अगर उसके पास करोड़ से ज्यादा पैसा है तो आपको जो है उसका कुंडली में शनि, शुक्र, बुध, राहु आपको अच्छी स्थिति में मिलेंगे, और सूर्य भी अच्छी स्थिति में मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो नाम और कीर्ति का अपना जो है मतलब नाम, नेम और फेम जो है दोनों देता है सूर्य. For anyone with money more than 1 crore in their account, you are likely to see that the Mercury, Venus, Rahu, and of course Sun also will be in a very good position. Saturn, of course, is the karaka for work, so that will be in a good position. So these are found to be in a good position as per Nadi astrology. देखिए एक चीज और जो हमने देखी है कि बिना सूर्य आदमी सक्सेस नहीं हो सकता है. Without a good sun, it is very difficult to succeed in career. क्योंकि एक इंसान जो है
दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो है वो काम के पीछे पीछे चलते हैं और दूसरे इंसान है उसके पीछे, मतलब वो आगे आगे चलता है, काम उसके पीछे पीछे चलता है। There are two types of people, the ones who chase work and the ones who are chased by the work. अब पहले जो कैटेगरी का इंसान है उसका सूर्य कमजोर है। The people who chase the work are the ones who have a weak sun. क्योंकि उसका सूर्य कमजोर है, क्योंकि उसका जो है उसका मतलब जो है उसका नाम नहीं है मार्केट में, ना ही उसका फेम है। Due to weak sun, he does not have fame and he does not have a good brand name in the market. आज सलमान खान चल रहा है, उसके नाम से चल रहा है। Salman Khan is a big name because of a strong sun. तो यहाँ पर जो है कोई भी मतलब जब 10वां भाव चलता है और उसके साथ सूर्य चलता है तो काम उसको ढूंढ के आते, लोग उसको ढूंढ के आते हैं। If the 10th house and the sun are strong, then people will seek you out for work and opportunities will come to you. उसको काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसका नाम ही उसको काम ढूंढ के देता है। They don't have to chase the work. Their name, their brand brings them opportunities, attracts work, attracts all kinds of career opportunities. अब देखिए अच्छा ज्योतिष जो है उसकी कुंडली में शनि तो बहुत अच्छा होगा। In a good astrologer's chart, Saturn will be in a good position. अब शनि अच्छा होगा तो बुध और शुक्र है वाणी के कारक है, बोल वचन के कारक है। Yes. Mercury and Venus are the karakas, are the causal factors for speaking and being witty and so on. और सूर्य उसके साथ मिलता है तो मतलब देखो वहां पर बुध जो है कम्युनिकेशन का कारक है, लोग उसकी माउथ एडवर्टाइज करते हैं ज्योतिष की। So when Mercury is strong, it represents the word of mouth publicity which happens. And sun, if the sun cooperates, then the fame and the power further increases. यहाँ पर एक बात देखिए आप कि विदाउट मर्क्यूरी यानी जब तक बुध जो है एक्टिव नहीं होता है आपकी पब्लिसिटी नहीं होती है, क्योंकि बुध जो है थर्ड हाउस के साथ कनेक्शन है और लोग जो है पब्लिसिटी करते हैं। और शुक्र हमारा जो नेचुरली जो है हमारा दूसरा भाव है तो हमारा माउथ है और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है, तो पब्लिक जो है वो हमारा कम्युनिकेट मतलब हमारा पब्लिसिटी करता है। Without the activation of Mercury, if Mercury is in some kind of weak position, then publicity and reaching the audience becomes difficult. But if Mercury is strong, automatically there would be people coming in and through word of mouth, publicity starts happening without much effort. तो वहां पर पब्लिक जो है वो उसके जो है उसको मतलब जो है प्रमोट करती है। The public as in the clients and the audience, आप clients ही बोल रहे हो ना public से? ऐसा बराबर है। हाँ, जो the clients who are coming to the astrologer, they start promoting the astrologer if the astrologer has a strong Mercury. और सूर्य जो है विश्वास का भी कारक है। Sun also represents faith. क्योंकि जब तक कोई इंसान जो है हमारा नाम कब होगा जब हम फेथफुली काम करेंगे तब। We are able to gain fame and name when we work faithfully, and that happens because of Sun's good positioning. अब यहाँ पर जो है ये तो हमने अच्छी अच्छी बातें करी, जो इंसान के पास बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा नेम है। So we spoke about the good things and the good factors which lead to good name and fame. अब एक कैरेक्टर आता है जहां पर उसको बदनामी के योग मिलते हैं। Now we'll look at the factors which bring notoriety and bad name. अब वहां पर देखो शनि तो अच्छी पोजीशन में था, एक इंसान का नाम था, जैसे आप मान लो कि सचिन तेंदुलकर के साथ विनोद कांबली आया तो विनोद कांबली बहुत अच्छा चला शुरुआत में। एक टाइम जब तक अपना जो है मतलब जो क्रिकेट जानते हैं तो आप देखिए कि मतलब सचिन के साथ जो है कांबली का बहुत अच्छा चला और कांबली का ग्रोथ बहुत अच्छा था, मगर सडनली वो कहाँ आया कहाँ चला गया किसी को पता नहीं चला। So sir gives the example of Sachin Tendulkar and Vinod Kambli, two cricketers who entered cricket at the same time, and Sachin Tendulkar lasted for a long time and
Vinod Kamli was someone who succeeded initially, but later there was no name and fame, and nobody knows where he disappeared from the scene. तो वहां पर क्या हुआ, विनोद कामली का जो अपन अपन चार्ट, हमको तो पता नहीं, हालांकि मैं जो है सेलिब्रिटी का चार्ट कम लेता हूँ या लेता ही नहीं हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी सेलिब्रिटी का चार्ट देखा नहीं है, और देखने की मुझे, क्योंकि वो सब अपने को पब्लिक को मालूम है. So hardly looks at celebrity chart, so maybe the position of Saturn, etc., is not so clear because he has not seen Vinod Kamli's chart. तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया कि विनोद कामली जब चला तो उसकी कुंडली, मतलब उसका जो हॉरोस्कोप था उसमें सर्टन मतलब जो शनि अच्छा पोजीशन पे चला होगा, उसका जो है सूर्य अच्छा पोजीशन पे चला होगा, और उसने अच्छा पैसा कमाया भी सही. कुछ प्रॉब्लम आया, एरर आया लगता है. हेलो, No, we are able to hear you, Kirit bhai. You can continue. अच्छा आप सुन रहे हैं? हाँ, we are able to hear you. नहीं, Floyd, मतलब आपकी आवाज आ रही है, साफ आ रही है. मगर वो ट्रांसलेटर जो है ना बीच में, Floyd में हम Floyd की आवाज चली गई होगी. हाँ उसके जो Yeah, Floyd, I think your voice is not audible. Yeah, he disconnected. He is disconnected. Floyd is disconnected. सर 1 मिनट वेट कर लेते हैं, वो ज्वाइन कर रहे होंगे अभी. आराम से, वो कैरियर अप डाउन है ना, तो अप डाउन आएगा ही. कहीं ना कहीं सेकंड हाउस ऑपरेट हो गया है, कम्युनिकेशन कट हो गया है. Oh, sorry, my light Yes. went off. Now I think he is back. So Floyd, your voice is not audible, so you have to. Yeah. So Yeah, my now it's internet better. got disconnected due to power failure. Yeah, let's Yeah. continue. Okay. Yes, correct sir. आप कंटिन्यू करिएगा. तो हमने जो बताया कि जो विनोद कामली है, जब उसका मतलब एक उसका नाम था, तो कहीं ना कहीं शनि चला, कहीं ना कहीं सूर्य चला, कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइज में भी आया तो बुध भी चला, और कहीं ना कहीं उसने पैसे भी कमाए. So when Vinod Kamli was having his good time and fame, his game was good, his advertisements worked. So somewhere or the other, Mercury was also strong, and later things changed. अब वो देखिए मार्केट में नहीं है. Now he is not in the market, he is not being seen on the scene. हाँ, जो कहीं ना कहीं उनका जो नेम फेम जो था, यानी सूर्य शनि, वो कहीं ना कहीं जो है वो पीट रहे. So somewhere or the other, we can presume that Sun and Saturn are in a bad position at this point of time. अब हो सकता है, देखो हमको उनको मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं, मगर मार्केट में जो है उनका मतलब जो है चर्चे नहीं हो रहे हैं. तो कहीं ना कहीं बुध जो है मार्केटिंग का कारक है. बुध जो है वो मतलब पब्लिसिटी का, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केटिंग में आता ही है, तो वो दिख नहीं रहे, मीडिया में नहीं दिख रहे. The fact that we don't see him in the media and on the news, it shows that something is going wrong with Mercury. तो ये हमने एक उदाहरण बताया कि किस तरह से जो है एक ग्रह अच्छा बनता है तो कैसे लोग उसके पीछे भागते. This shows that how, due to a good planet, people start chasing you, and in case of planets not working so well, there can be some issues. नाड़ी में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये इंसान का भाग्य कब चमकेगा. In Nadi astrology, we will see first of all how to look at the luck factor coming into this person's life. How will his destiny open up? देखो दो प्रकार के जो है हमारे जो नाड़ी ज्योतिष में दो प्रकार बोले गए, एक भाग्य है और एक हमारा कर्म है. In Nadi astrology, we look at two things. One is the destiny, which is bhagya, and karma, which is the work or the effort. जो भाग्य से मिलना है, यानी बोलते हैं ना जो भाग्य में लिखा वो चल के आएगा. तो जहां पर गुरु का संबंध आता है, जब गुरु अच्छा योग बनाता है तो वो चीजें हमको स्मूथली मिल जाती है. Whatever is part of your destiny, it comes in very easily and naturally into your life, and there is a connection with Jupiter. अब देखिए मेरे कुंडली में गुरु से शुक्र का बहुत शुभ संबंध बन रहा है.
मेरा मर्क्यूरी और जो गुरु है परिवर्तन में है। Personal chart, there is a parivartan between. You are not audible, Floyd. In Kiritsa's chart, there is a yoga between Jupiter and Mercury. परिवर्तन में है। There is a parivartan, there is an exchange yoga, और शुक्र से अच्छे संबंध बना रहा है। and there is a good connection with Venus. शुक्र पत्नी का कारक है। Venus indicates the wife. तो मुझे पत्नी ढूंढनी नहीं पड़ी, सामने से आई। So Kiritsa did not have to chase his wife came spontaneously. और मेरे भाग्य में पत्नी का सुख भी है। And his destiny indicates the coming of a wife and the marital pleasure. क्योंकि मेरा भाग्य जो है, भाग्य का कारक गुरु है, वो शुक्र से शुभ संबंध बना रहा है। The Karaka of destiny, which is Jupiter, is in a good connection with Venus, which indicates the wife or the partner. यानी हमारा बोलने का मतलब क्या है कि अगर गुरु जो है वो अगर कुंडली में अच्छा है तो उसका भाग्य अच्छा है। If Jupiter is placed well, then the bhagya, the destiny goes well. और गुरु जिस ग्रह के साथ संबंध बनाएगा, The planets with which Jupiter creates a connection, वो जो कारक है उसका सुख उनको जो है इजीली मिल जाएगा, या कारक संबंधित जो चीजें हैं उसको आसानी से मिलेगी। so the planets which connect with Jupiter in some way, we will get the benefits, the results of those planets and their significations. और शनि जहां पर मतलब जो है, शनि जो है वो कर्म कारक है, यानी बिना मेहनत का वो देगा नहीं। Saturn indicates karma, so without efforts, Saturn will not give results. गुरु जो है वो हमको सीधा दे देता है, और शनि जो है वो हमको बिना काम किए देगा नहीं। Jupiter will give you results without effort, but Saturn will definitely insist on efforts. अब मान लो शनि का संबंध 5वें भाव से आएगा तो संतान के लिए मेहनत कराएगा। If Saturn connects with your 5th house in some way, then you will have to make efforts to have a child. एक इंसान जो शादी करता है उसके 2-3 महीने में उसका वाइफ प्रेग्नेंट हो जाता है। Sometimes a person gets married and within 2-3 months his wife is pregnant. तो वहां पर डेफिनेटली जो है गुरु का कमाल दिखेगा वहां पर, क्योंकि ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी ना संतान के लिए। In those cases where people make less effort to have for procreation, you will see that Jupiter is positioned well. और उससे उल्टा जो है शनि का संबंध आ गया तो फिर वहां पर जो है लगे रहो मुन्ना भाई। And let's say if Saturn is connected with 5th house, then he's using a popular movie phrase called Lage Raho Munna Bhai, which means keep working hard. सही बात है। तो यहां पर जो है शनि जो है वो जिससे भी संबंध बनाएगा बिना मेहनत का देगा नहीं। Wherever Saturn connects, then you will have to make efforts to get results in those areas. अब शनि का संबंध बुध से आया तो पढ़ाई में मेहनत कराएगा। If Saturn connects with your Mercury, you'll have to work hard at your studies. और शुक्र के साथ संबंध आएगा तो पैसे के और बीबी के लिए हमको काफी रिश्ते देखने पड़ेंगे। If Saturn connects with your Venus, you'll have to work hard and search hard for a wife. कई लोग जो है ना काफी लड़कियां देखते हैं ना, मगर उनका वो जो है मेल नहीं होता है, क्योंकि उनको मेहनत। There are many people who see multiple potential partners. They look for matches, but they are not able to find a wife. तो वहां पर मेहनत का जरूरत है। शनि मेहनत कराएगा, आसान से नहीं देगा। This effort has to be put in because of Saturn's influence. अब हमने जो बताया कि जो अच्छा शनि है
यानी अच्छा जो मतलब जो इंसान कमा रहा है उसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, कंटिन्यूटली ग्रोथ हो रहा है, उसकी कुंडली में हमको शनि, बुध, शुक्र और राहु का संबंध अच्छा मिलेगा। So I've already mentioned that Saturn, Mercury, Venus, Rahu in good positions will give good career success. और एक इंसान जो है अपनी जिंदगी में दरिद्र जिंदगी जी रहा है, There can be a person who's living a very miserable life. तो उसकी कुंडली में शनि के साथ साथ शुक्र, बुध, राहु वो भी आपको पीटे हुए मिलेंगे। In his chart, you will definitely see Saturn, Mercury, Venus, Rahu all in bad position, leading to a miserable life. और जिसकी कुंडली में अप्स एंड डाउन्स है उसकी कुंडली में दोनों योग मिलेंगे, अच्छे योग भी है, बुरे योग भी है। In the people who have ups and downs in their life, you will see good combinations as well as bad combinations. तो जैसे ही हम जो है एक्सप्रेस हाईवे पे आएंगे, हमारी गाड़ी जो है 150 की स्पीड से चलेगी। Whenever we get onto the expressway or the freeway, our vehicle can run at a very high speed of, let's say, 150 kilometers per hour. और वही जो है वही गाड़ी और वही इंसान भिंडी बाजार में आ जाएगा तो उसकी गाड़ी 10 किलोमीटर से भी नहीं चलेगी। And if the same person brings the same car to Bindi Bazaar, which is a very crowded area in Bombay, then he will not be able to even drive at 10 kilometers per hour. This is just an analogy, an example. आदमी इंसान वही है, ग्रह के कॉम्बिनेशन वही है, मगर ग्रह जो है उसके चलने का तरीका और उसकी जगह उसकी बदल गई। The person is the same and the planetary combinations are the same, but the way in which they operate at different times differs. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। If anyone has any doubts, you may ask questions. आप जरा चैट से मुझे बता देना क्या सवाल है। You can post your questions on chat. किसी को कंफ्यूज है तो If someone is confused till now, you could post your questions on chat. Lloyd, वो बहुत वॉइस लो आ रहा है, वॉइस बहुत लो है तेरा। Sure. Kirit bhai, my question is how it is different Nadi astrology from Vedic astrology, because what we are hearing it is coming as similar to Vedic astrology. नाड़ी और वैदिक में क्या डिफरेंस है किरीट भाई? देखिए जो है मैं सिर्फ जो है वो विद्या को पढ़ा है, कभी जो है ना किसी विद्या का डिफरेंस नहीं करा। हर विद्या अपने में माहिर है। हाँ, आपका लक उसके ऊपर आ गया, आपका किस्मत आपको साथ दे रहा है, तो देखो हर चीज का जो है एक अलग एंगल होता है, बराबर है। मैं मेरी पत्नी को पत्नी मानता हूं और मेरा बेटा जो उसकी मां मानता है, तो दोनों एक ही है, देखने का रंग अलग है। So I'll just translate. While learning astrology, Kirit Bhai says that he did not see a difference between Nadi astrology and Vedic astrology. He sees everything as part of the same thing. For example, his wife, he will see his wife as his wife, but his son sees his Kirit Bhai's wife as the mother. So he says he has not tried to differentiate while learning astrology. अब मैं बोलूंगा मेरी पत्नी है। No, my question was different, Kirit bhai, because what we heard till now it was looking like Vedic astrology only. The way impact of Shani, the way impact of Jupiter, the way impact of Mercury. So we could not understood ki if it is same only, then why two names? नहीं समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। नहीं, वे बोल रहे हैं कि आपने जो अभी तक बताया वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसा ही साउंड कर रहा है, सुनाई दे रहा है कि वही चीजें हैं, वही कॉन्सेप्ट है। नहीं देखो कॉन्सेप्ट तो वही आएगा, तो इस तो मार्केट में जो है प्रोडक्ट अलग अलग नाम से बिकते हैं, तो हमको तो देखो हमको जो हमने हमारे गुरु ने हमको सिखाया, तो हमने उनको नहीं पूछा कि वैदिक में क्या फर्क है, नाड़ी में क्या फर्क है। एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा, हमने उस कॉन्सेप्ट को अपनाया और उस कॉन्सेप्ट से हमको देखो एक बात है, एक ही माँ के बच्चे हैं। कोई भी इंसान जब है, अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले धरती पे कोई ना कोई तो आया ना, उसी के हम बच्चे हैं ना। फिर हमने सबने अपना संप्रदाय बनाया, हमने सब धर्म बनाया, मगर आप पहले आए तो मेल और फीमेल ही आए ना। तो वैदिक जो है वो हमारी माँ है और वेद को माता बोला गया है और माँ के कोख से सब बच्चे जन्मते हैं। I'll just translate that what Kirit Bhai is saying is that he has got these teachings directly from his guru
and all of this comes from the same mother, which is the Vedas, and hence from Vedic astrology, all these things are derived, and this is what we respect. क्योंकि जब हम वहां पर जो हम वैदिक को देखते हैं तो फिर भाव को और भावेश को पकड़ते हैं. In Vedic, we generally focus more on the bhavas, the houses, and the house lords. भाव भावेश कारक. Bhav, bhavesh, karak, house, house lords, and karakas, which is causal factors. अब हमने जो ये बात करी उसमें हमने कहीं भाव का जिक्र नहीं किया ना, कि दूसरे भाव का संबंध जो है वो 10वें भाव के साथ आएगा, 11वें भाव के साथ आएगा, भाग्य भाव के साथ आएगा. हमने वो बात ही नहीं करी ना. Kiritbhai says that he has nowhere mentioned about the houses, house lords during the entire conversation, which is usually the case in Vedic astrology. तो बोल सकते हैं. देखो एक बात है, जिनको बोलना है कि ये वैदिक का पार्ट है तो बोल सकते हैं, मगर यहाँ पर जो है हम जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं उसमें देखो अगर अपन वाद विवाद करेंगे तो हमारा जो मतलब देखो मैं भी लाइव हूँ, बरोबर है, मेरे पास कोई लिखा हुआ कोई चीज है नहीं, तो फिर क्या होता है अपन भटक जाते हैं. तो आप सुन लीजिए और लास्ट में अगर आपको कुछ लगता है इसमें, मतलब आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीजें हमको सीखनी है, अप्लाई करनी है, आप करिए. अप्लाई नहीं करनी है तो छोड़ दीजिए. So Kiritbhai suggests that we take the best from this lecture, whatever is useful, apply it and see if it works. किसी को और कोई सवाल हो तो बताइए. हमने जो बताया उसमें किसी को समझ में नहीं आया. चैट में कुछ सवाल है. हाँ. एक है, किसी ने पूछा है रेट्रोग्रेड प्लैनेट को नाड़ी में किस तरह से देखते हैं. देखो जो वक्री ग्रह है उसको हम नाड़ी में पीछे की ओर भी रखते हैं, यानी जिस भाव में रहेगा उसके पीछे के भाव में भी हम रख के उससे बनने वाले योग हम देखते हैं. So in Nadi astrology, what he says is we put the planet in the previous house if it is vakri or retrograde, and we see the effects. पिछले घर में रखते हैं ना. हाँ. Yes. और जुपिटर. गौतम दावे साहब पूछ रहे हैं कि जुपिटर का एस्पेक्ट वीनस से हो रहा है. हाँ. तो इससे अच्छी वाइफ मिलती है ऐसा आपने कहा, बट हाँ. उन्होंने देखा है कि कोई 32 इयर्स का आदमी है जिसको अभी तक मतलब फीमेल साइड से कुछ आया नहीं है, बीवी नहीं मिली है, ऐसा ये पूछ रहे हैं गौतम दवे साहब. देखो अभी उनका जो प्रश्न है उसमें हम क्या देखेंगे कि जब हम कुंडली देखेंगे तो शुक्र जो है वो चलते चलते उनके गुरु के पास आएगा. So we will see whether Venus will come towards Jupiter. Means wife उनकी अपने आप सहज ही आएगी. नहीं, देखो दो चीजें हैं. मैं अपने वाइफ के पास जाऊंगा, वाइफ मेरे पास आएगी, दो चीजें होगी ना. There are two things which can happen. Either the man will go towards the wife and find her, or the wife will somehow, through some circumstance, come towards him. जब शादी होती है तो जब हम जीव कारक को गुरु मानते हैं, बराबर है. अब जीव का तो कोई मतलब जो है ना, जीव के लिए फिर देह आएगा तो मंगल अपन पकड़ेंगे. तो जब शादी होता है, शादी के मंडप में मंगल और शुक्र एक साथ मिलेंगे तब फेरे लगेंगे ना. So he says that Jupiter और Venus कहा ना आपने? नहीं, देखो गुरु जो है जीव कारक है, मगर जीव कहाँ पर है? तो देह के अंदर जीव है. हम मंगल को भी लेंगे, उसका जो 1 और 7 का संबंध है उसे हम क्या बोलेंगे कि गुरु मंगल और अपना शुक्र है, उसके संबंध देखेंगे वो कौन से साल कहाँ मिल रहे हैं, फिर हम शादी का डिसाइड करेंगे कि ये साल शादी का योग बन रहा है. Since Jupiter, Mars and Venus are involved, we will look at their connection to decide if the yoga for marriage is formed, since Jupiter is also the Jeev Karaka. गौतम दवे साहब ने लिखा है कि जुपिटर जेमिनाई में है और वीनस लिब्रा में है उस केस में. वो कहीं भी होने दो ना. किसमें है? अपना मिथुन राशि में. जुपिटर मिथुन राशि में है और शुक्र वीनस लिब्रा में है. हाँ तो होने दो ना. मेरे हिसाब से पहले आपका सब्जेक्ट कवर कर लीजिए, देन आफ्टर
नहीं नहीं करेंगे सेशन रखें। तो लगेगा 2 मिनट लगेगा। देखो अपने पास तो जो है ना, देखो हम जो है हमारे पास सब टूल है ना। अब उनका 32 साल में शादी नहीं हुआ, तो पहले जो है ना एक बात देखना है कि जो है ना मतलब जीव कारक गुरु और पत्नी कारक शुक्र, बराबर है, इन बीच में कितने जो है कितने ग्रहों का फासला है। We have to see the distance between Jupiter and Venus in case of this person who is not married at 32 years old. तो दोनों के बीच में कितना फासला वो देखना पड़ेगा, उसके बीच में कौन से ग्रह आ रहे हैं। We have to see which planets are coming also between Jupiter and Venus. वो एक गाना है, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। There is a song which says Sajan, it means my beloved is on the other side of the river and I want to meet him, but I cannot. अब वहां पर क्या होता है कि जो नदी है वो उसका दुश्मन बनी है। The river is seen as an enemy by the man who is seeing his beloved on the other side. तो वहां पर क्या है कि गुरु जो है वो इजीली शुक्र को नहीं मिल रहा है। अब मान लो देखो अभी यहाँ पर साइक्लोन आया, तो साइक्लोन में बोला कि आप जो है मतलब जो नदी जो है तूफान पे चल रही है, अब नदी नाला क्रॉस नहीं करो। तो ये एक जो है ना एक तरह से काम करता है कि बीच में जो है वो ग्रह उसको जो है उसको रोकते हैं मिलने के लिए। The planets in between Jupiter and Venus stop the interaction of Jupiter and Venus as if there is a cyclone and you cannot go by the boat from one end of the river to another. गौतम दवे साहब बोल रहे हैं कि सिर्फ शनि है दोनों के। तो शनि तो विलंब का कारण है। एक बूढ़ा इंसान बीच में खड़ा है, अब वो आगे चलेगा तो देखो शनि हमने पहले बताया ना, अब शनि क्या करेगा उसको विलंब करेगा। हमने पहले बताया कि शनि का संबंध आएगा तो क्या होगा, तड़पा तड़पा के करेगा या क्या होगा, हमको एफर्ट्स लगेगा। और ये तो एक साइड, दूसरी साइड भी तो देखने पड़ेंगे ना, दूसरी साइड कौन से ग्रह है। Kirit Bhai says that he has already mentioned that Saturn is the causes the delays. Saturn is the karaka for delays, and hence Saturn coming in between is going to cause delays in the marriage. कुंडली देख के फिर पता चलेगा कि क्या होता क्या नहीं होता है। Only when we look at the chart in detail, we will be able to understand and say in more depth. और किसी का कोई प्रश्न है? किसी ने पूछा, मेहुल जी ने पूछा है कि जुपिटर और राहु ग्रोथ के हिसाब से आप इसके बारे में थोड़ा सा और हाईलाइट करें। नहीं देखो यहाँ पर जो है जब भी जो है गुरु के आगे मतलब गुरु के साथ राहु का संबंध आएगा, तो गुरु देखो गुरु जो है भाग्य का कारक है और राहु सडनली जो है ना मतलब सडनली मतलब जो है अचानक का कारक है, सडनली देता है। So Jupiter represents the growth and Rahu represents the sudden gain. तो वो क्या करेगा, दो तरह के काम करेगा, या तो अचानक भाग्य को बहुत सॉलिड बनाएगा या अचानक जो है जैसे हमने बताया कि विनोद कामली जो है आया और चला गया। तो कहीं ना किसी की कुंडली में और उनका संबंध आएगा। राहु जो है सडनली देता है और सडनली जो है उसको मतलब जो है ना, क्योंकि वो जो है एक मतलब जो है ना राहु अचानक का कारक है, सडनली देता है सडनली लेता है। तो वहां पर उसका Rahu is the karaka for sudden happening. So in the case of Vinod Kambli, we saw that suddenly he gained fame and suddenly at some point he lost the fame. So somewhere or the other, there is a role of Rahu in sudden gains and then suddenly success being taken away. अगर हेल्थ के लिए वो अशुभ है, for health purposes, Rahu is seen as not favorable. क्योंकि गुरु जो है वो अपना प्राणवायु का कारक है, ऑक्सीजन का कारक है, और राहु कार्बन डाइऑक्साइड का कारक है, तो दोनों की बनती नहीं है। So Jupiter and Rahu are not good for the health because Jupiter represents the gas and the air, ऑक्सीजन, प्राणवायु, which is oxygen, and Rahu क्या है? राहु कार्बन डाइऑक्साइड है। Rahu carbon dioxide. Rahu represents carbon dioxide. और किसी का कोई सवाल हो तो? अभिजीत दास जी ने पूछा है, सर जॉब लॉस और जॉब गेन कैसे होते हैं? वही तो हमने बताया है ना,
हमने जो पहले ही बताया कि आपका जॉब है, तो जॉब है तो कहीं ना कहीं जो है शनि आपका जो है, शनि आपको काम दे रहा है। बुध और शुक्र आपको जो है मतलब बुध जो है छठे भाव का कारक है, वो आपको नौकरी दे रहा है, शुक्र आपको पैसे दे रहा है। अब ये जो है अच्छे पोजीशन पे चल रहे थे, सडनली कोई ग्रह आया उसको ब्रेक कर दिया। So if you're already having some work, then Saturn is strong, and then Mercury, Venus, Rahu are also well positioned. But something comes in between, or something happens in this good combination, then things start breaking. यहाँ पर जो है अभी अब हमने बोला कि भी जो है हमारा जो कामकाज है उसका जो ग्रोथ दे रहा है, वो हमने पहले बताया कि भाई हमारा जो शनि है, गुरु है अपना, शनि शुक्र बुध राहु, ये हमको बहुत अच्छा ग्रोथ देते हैं। अब जो हमारा कामकाज है, या हम बोलेंगे कि हमारे जो ये चार ग्रह जो है, जैसे शनि है तो शनि कामकाज का कारक है, अब कामकाज में ब्रेक आ जाएगा तो शनि के जो मतलब जो है ना सॉलिड दुश्मन जो है वो बोला गया है अपना, केतु को बोला गया है, उसके बाद मंगल को बोला गया है। So Saturn is the karaka for work, along with Mercury, Venus, Rahu, which are also needed for career success. So if the enemies of Saturn somewhere start afflicting like Ketu and then Mars, then we will see some kind of break in the work. तो Saturn और Mars के इंटरेक्शन से ब्रेक होगा या क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, क्या होगा ना, कैसे आएगा, कैसे ग्रोथ करेगा और कैसे मतलब लॉस करेगा, वो हम आगे बताएंगे ना। तो जैसे जो है ना हमने एक बात बताया कि शनि का अच्छा पोजीशन था तो उसका कैरियर में बहुत अच्छा आया। वही इंसान जब जो है शनि उसका जो है वो प्रोग्रेशन में जैसे अपना जो है मतलब नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ गुजरा, वही अच्छा खासा इंसान जो था कमा रहा था, वो सडनली जो है लॉस करना शुरू कर दिया, या उसका फेम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। In the progression, when Saturn starts meeting its enemies in some way, then there are losses or some kind of loss of fame and so on. उसी तरह से जो है बुध जो है हमारा छठे भाव का कारक है, मतलब छठे भाव का नेचुरल जोडिक है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है, थर्ड हाउस मार्केटिंग है। उसका जब संबंध जो है मंगल से आएगा और केतु से आएगा तो वो बुध को खराब करेगा। Mercury rules third house and sixth house of the natural zodiac, and in any case कौन सूर्य आने से या नहीं, केतु और अपना मंगल बुध के साथ बुध को जो है some interaction with Ketu and Mangal, that is Ketu and Mars with Mercury, there will be a problems in the communication and work. और उस तरह से शुक्र जो है, शुक्र पैसे का कारक है, और जैसे ही जो है मतलब ब्रेक का कारक जो है उसको केतु को माना गया है और उसका दुश्मन भी है, क्योंकि शुक्र जो है माया, मतलब जो है शुक्र जो मोह माया है और केतु जो है वैराग्य का कारक है, तो दोनों का एक दूसरे से जमता नहीं है। तो जैसे ही शुक्र जो है उसका शुक्र का संबंध जैसे ही केतु के साथ आया, या केतु का संबंध जैसे ही शुक्र के साथ आया, केतु को डिस्ट्रॉय करेगा। Venus represents money and Lakshmi, and it also represents Moh Maya, which means the illusions and the external world, whereas Ketu on the other hand represents detachment. So whenever there's an interaction between Venus and Ketu, we will see a detachment or a going away of the money or some break in the money prospects. और उसी वक्त जो है जो हमने बोला था मान और प्रतिष्ठा का, सम्मान का जो कारक है, वो सूर्य भी कहीं ना कहीं जो है वो अपने जो है राहु के साथ कनेक्शन में आ जाएगा। Whenever sun comes in connection with Rahu, there are also possibilities of these kind of career breaks. एक इंसान जो है वो अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, उसका अच्छा खासा जो उसका सिस्टम काम कर रहा था, और सडनली जो है वो अपना जॉब में उसको प्रॉब्लम्स आने लगे, वो जो काम करता था काम बिगड़ने लगे, उसका नाम खराब हुआ, उसका यश खराब हुआ, तो कंपनी ने उसको अपना टर्मिनेट कर दिया कि भाई अब हमारा जो है आपका काम हो नहीं रहा है, आप हमारा टारगेट अचीव नहीं कर रहे हो, आप जो है अगले महीने से बाय बाय करो। Let's take the example of a person who was working very well, who was doing very well in his career, and then suddenly his performance goes down, and at some point his company terminates him and tells him to leave because he's not achieving his targets and not performing as per the required standards. तो यहाँ पर जो है दो प्रकार के लोग हैं। एक जो है वही जो इंसान है, हमने जो गाड़ी का बताया था कि हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी है और ड्राइवर भी वही है, गाड़ी भी वही है,
मगर जैसे उसको अच्छी जगह मिली, एक्सप्रेस हाईवे मिला, उसकी स्पीड जो है 160 की हो गई। वही गाड़ी, वही ड्राइवर जब भिंडी बाजार में आया, उसके मतलब जो है एवरेज जो है 10 के ऊपर भी नहीं आई। I am again repeating the example where the same person will have two different conditions, opposing conditions. For example, when he's driving on the expressway or the freeway, he can drive at a very fast speed, but when he comes into the market area, he cannot drive at a fast speed. He has to drive very slow. तो हम क्या बोलेंगे कि जो है आदमी वही था, गाड़ी थी वही थी, कैपेसिटी भी बहुत अच्छी थी, मगर क्या हुआ, समय और संजोग जो है वो विपरीत हो गए। The person is the same, the vehicle is the same, but the time and the situations have changed. बस यही जो है वो हमको कुंडली में देखना है। This is what we have to see in the Kundali and in order to decide the career ups and downs. एक चार्ट ले लूं मैं, अमित भाई? हाँ ले लो, एग्जाम्पल तो आप पर्सन है। हाँ, स्क्रीन शेयर हुआ आपका? नहीं अभी तक नहीं आया। आएगा आएगा। आ रहा है। आया स्क्रीन? नहीं शेयरिंग पे अभी प्रोसेस में है। आएगा। चार्ट दिख रहा है सबको? हेलो, दिखाई दे रहा है। वैसे तो जो है मैंने अब तक जितने भी मतलब सप्तऋषि से जुड़ा हूं, कभी मैंने अपना चार्ट नहीं लिया है, और मैंने अमित भाई से मांगा था, मगर कुछ कारण से अमित भाई दे नहीं पाए, तो मैंने अपना चार्ट लगाया, क्योंकि अपना चार्ट होता है तो सब पता होता है क्या है क्या नहीं है, और वो फिर जो है पोस्टमार्टम वाली एस्ट्रोलॉजी पता हो जाती है कि हमने सब जो बैठा है सब बता दिया। मगर यहाँ पर चार्ट जो नहीं था, तो हमने ये चार्ट को लिया है। ये चार्ट मेरे जो है क्लाइंट का है, और ये जो है मेरे पास जो है कम से कम, ये जो मेरे पास है कम से कम जो है 5-7 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इंग्लिश करना है कि नहीं करना है? इंग्लिश करना है, ट्रांसलेट के नहीं करना है चार्ट में। Lloyd, are you there? You have to do translation for chart. चार्ट Okay. चार्ट क्या देते हो? एक मिनट। हाँ, आ रहा है चार्ट? हाँ सर अब आ रहा है। दिख रहा है सबको चार्ट? हाँ जी दिख रहा है सर। हाँ, ये जो क्लाइंट है ये मेरा कम से कम 6-7 साल से मेरे से जुड़ा हुआ है, और वो जब मेरे पास आया था तो उन्होंने बोला, मतलब बहुत सुखी इंसान है, बहुत सुखी इंसान है, और मतलब अपन करोड़पति दोनों ही बोलेंगे, उससे ज्यादा बोलेंगे। तो उन्होंने बोला था कि पैसे की बहुत दिक्कत है और समय बहुत हालत खराब जैसा चल रहा है। तो मैंने उनको बोला था कि जैसे आपका जो है शनि धनु राशि में आएगा, तो धनु राशि में आएगा तो यहाँ पर जो है 8वें भाव में शुक्र जो है, शनि शुक्र और बुध से जो है संबंध बनाएगा। और मैंने उनको टाइम भी बताया था, मैंने वो टाइम में आपके पास कैसे भी कहीं से भी पैसे आ जाएंगे और सॉलिड पैसे आएंगे। उसके पहले हमने जो है उनको बताया था कि कहां पर उनके सॉलिड पैसे आए थे। तो जैसे ही जो है अपना धनु का अपना जो आया शनि आया, और उन्होंने जो है सूर्य के साथ संबंध बनाया, और शनि से संबंध बनाया, बुध से संबंध बनाया, अपना शुक्र से संबंध बनाया, और अपोजिट डायरेक्शन में गुरु से भी संबंध बनाया। और यहाँ पर जो है मंगल जो है
वो यहाँ पर तीसरे भाव में है, मतलब जो है ना शनि से तीसरे भाव में है। तीसरा भाव पराक्रम का है, डेयरिंग का है, और ये जो है बड़ा मतलब जो है बड़ा बिजनेसमैन है, तो उनके करोड़ों रुपए जो है वो उनके फैक्ट्री में लगे हुए हैं। तो वहां पर मंगल का भी संबंध आया, और जब हमारा उनसे बात हुआ, जब वो चीज चला गया, तो हमने उनको पूछा कि आपका जो था वो आप मैटर सलट गया, तो उन्होंने बोला किरीट भाई, आपने जो हमको समय बताया था उसी समय में मेरे पास अचानक कोई बड़ा काम आ गया और मुझे 6 करोड़ रुपए उसमें से मिले, नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का हुआ। हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ जी सर। इंग्लिश करना है कि नहीं करना है? इंग्लिश तो करना है। फ्लॉयड जी कहाँ गए? फ्लॉयड, आर यू देयर? अरे लॉयड को अनम्यूट करो उसको, उससे नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो फिर चलो मैं आगे। Yes. नहीं सर, वो अनम्यूट हो गए। हाँ, हाँ, मगर वो जब मेरे पास आए थे तब उनका जो है वृश्चिक राशि में जो है शनि चल रहा था, तो वृश्चिक राशि में, हाँ सर आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे अब तक जो मेन इसका जो है, तो मैं ट्रांसलेट करूंगा इसको, क्योंकि मेरा म्यूट हो गया था माइक। अच्छा। तो अभी इन लोगों ने मैं ओपन किया बताता है। हूँ, ये जो क्लाइंट है मेरा, वो मेरे से 6-7 साल से जुड़ा हुआ है, मतलब ज्यादा हो गया उनको, 10 साल भी हो सकता है, मगर 6-7 साल से तो हमारा कंटिन्यूस बात होते रहता है। और ये जो है ये This is the chart of a client who has been associated with Kirit Bhai for at least 6 to 10 years. और ये जब मेरे पास आया था तो वो जो है उसका वृश्चिक राशि में जो है अपना शनि चल रहा था। When he came to Kirit Bhai, Saturn was in his Scorpio. अब वो देखो मंगल की राशि में है, Saturn was in the sign ruled by Mars. और नाड़ी के हिसाब से देखेंगे तो मंगल जो है वो दूसरे भाव को देख रहा है। As per Nadi astrology, his Mars is looking at the second house. और दूसरा वहां पर 12वें भाव में अपना जो है चंद्र है। And in the 12th house, there is Moon. तो यहाँ पर जो है शनि जो है वो शत्रु कर्तरी में आ गया। So Saturn has come into the territory of the enemy. तो वहां पर जो है उनको पैसे की बहुत मतलब जो है ना बहुत दिक्कत हुई। At that time, he faced lot of money issues. मगर मैंने उनको बोला कि जैसे जो है अपना शनि अपना जो है धनु राशि में आएगा और वो जो है अपना शुक्र बुध और अपना जो है शनि से संबंध बनाएगा और अपना जो है अपोजिट डायरेक्शन में गुरु और मंगल से बनाएगा, आपको कहीं से भी सॉलिड पैसे आ जाएंगे। और हमने उनको पहले जो पैसे आए थे उनका हमने उसको समय बताया था कि वहां पर आपके पास सॉलिड पैसे आए थे, तो उन्होंने बोला यस। Kirit Bhai told him that when Saturn moves from Scorpio to Sagittarius and comes opposite to Saturn and Mercury and also connects with Mars, then there will be good times coming for him in terms of money. And also he told him about the past situations in which this has already happened and the client had agreed that this giving the positive feedback. और जब हमने जो है जो अभी मकर राशि में जब आया, शनि मकर राशि में आया, तो उनको वापस थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि वहां पर जो है मकर राशि में आया तो केतु का संबंध बना ना, तो थोड़ी वहां पर इश्यू आए। तब हमने उनको पूछा कि आपका जो हमने बताया था, तो उन्होंने बोला कि आपने जैसा बोला वैसा छप्पर फाड़ के पैसा आया और हमको 6 करोड़ रुपया मिला नेट प्रॉफिट। In few years, when Saturn moved to Capricorn, again there was money issues because Saturn started associating with Ketu, and he also told Kirit Bhai that during the time when Saturn was in Sagittarius, as per Kirit Bhai's prediction, there was a very good flow of money where there was a windfall. उनके जितने भी जो कर्जे थे खत्म हो गए और वो प्लस में आ गए। All his debts and loans came to an end, and he had a positive balance. अब जब जो है यहाँ पर कुंभ राशि में जब आएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर अब जो है यहाँ पर डाउन आया, वृश्चिक राशि में डाउन आया, धनु राशि में अप आया, मकर में डाउन आएगा, कुंभ में अप आएगा। So we see that in Scorpio, the money went down.
In Sagittarius, the money went up. In Capricorn, again he had money issues. Now in Kumbh, Kumbh में क्या होगा? कुंभ में वापस जो है अर्न करेंगे. In Aquarius, when Saturn moves to Aquarius, he will again start earning well. तो इस तरह से जो है हम जो है अपना अप्स एंड डाउन्स जो है वो कुंडली में देखते हैं और हमारा एक्यूरेसी जो है वो 80% तक आ जाता है. So with this method of looking at the transit of Saturn, you will be able to predict with an 80% accuracy, which Kirit Bhai has already observed in his practice. देखिए जो है कुछ नाड़ी के जो लोग होते हैं बोलते हैं कि शनि के साथ गुरु का संबंध आएगा तो कर्मा धर्माधिपति योग बनेगा. जब गुरु शनि के ऊपर से जाएगा या शनि गुरु के ऊपर से जाएगा आपका अच्छा ग्रोथ करेगा. ऐसा लोग नाड़ी ज्योतिष वाले बोलते हैं, कई लोग. Some people, they say that when Jupiter crosses over Saturn, or called Dharma Karma Adipati, ये आवाज ब्रेक हो रहा है आपका. ये योग अच्छा है कि क्या कहा आपने? वो हम बात कर रहे हैं ना. यहाँ पर क्या होता है कि गुरु जो है गुरु भाग्य का कारक है, उसके ऊपर से कर्म कारक गुजरेगा तो नए नए काम आएंगे. या जो गुरु जो है वो शनि के ऊपर से गुजरेगा तो नए नए काम मिलेंगे, यानी काम में वृद्धि होगा. ऐसा कई नाड़ी ज्योतिष लोग बोल रहे हैं. हेलो सर, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया लगता है. कोई भी ट्रांसलेट कर लो ना, अगर जो उनका इंग्लिश अच्छा है तो कोई भी कर लो. सर आप बताइए, मैं ट्राई करता हूँ. हाँ, यहाँ पर जो है कुछ नाड़ी जो मतलब नाड़ी ज्योतिष जो बोलते हैं कि जब भी गुरु के ऊपर से नेटल गुरु के ऊपर से अपना जो है शनि जाएगा तो कामकाज बढ़ेगा या कामकाज जो है नया कामकाज मिलेगा, कामकाज बढ़ेगा. Some Nadi astrologers used to say that then whenever Saturn will transit upon the Jupiter or Jupiter will transit upon the Saturn, there will be some increment in the working area or the person will have some kind of increment in gain. हाँ सर. मगर वास्तव में ऐसा दिखा नहीं ना हमको कई कुंडलियों में. But it is not reality in the practice field. अब मान लो किसी का भाग्य जो है वो 50 साल के बाद, जैसे मेरा देख लो कि मेरा भाग्य जो है वो 48 के बाद मेरा भाग्य ने करवट बदला. तो 48 के पहले शनि जो है गुरु जो है कम से कम 4 राउंड जो है शनि के ऊपर से गया. वो तो हमने उसके ऊपर किया, उसका ट्रायंगल हमने नहीं लिया, खाली उसके ऊपर से गया तो 4 बार गया. क्यों कामकाज नहीं हुआ? 40 की एज में नहीं, मेरा जो है मेरा भाग्य चला 48 में. तो 48 साल में पहले गुरु के 4 राउंड तो शनि के ऊपर से गुजरे ना. तो वहां पर मेरा जो है मेरा कर्म चला नहीं ना. Yes sir. So actually sir is saying that this theory is not giving the success in the practical field, because sir is giving the own example that in the Sir's Kundli there will be some change, some positive change in the 48th of the age, and in that 48th of the running year the Jupiter will go upon the Saturn minimum 4 times. So actually the sir is saying in practical manner we are not seeing that this is the true things actually. हाँ सर. देखिए जब हम किसी का भाग्य की बात करते हैं, कामकाज की बात करते हैं तो एक हाथ से ताली नहीं बजेगी. When we will talk about the luck factor, when we will talk about the fortune factor, or when we will talk about the profession or working factor of anyone, there will be no clap with one hand only. जब हम जब देखेंगे कि शनि जो है वो गुरु के ऊपर से गुजर रहा है तो हम गुरु को भी देखेंगे कि गुरु कौन से रास्ते से जा रहा है. जैसे हमने बताया गाड़ी का कि गाड़ी ड्राइवर वही है मगर सिचुएशन बदल गया. Okay. So whenever we are seeing that Saturn is going through the Jupiter, Saturn is going from upon the Jupiter, at that time we should see also the Jupiter. Where is the Jupiter? Because we have to see the
every vehicle of the any vehicle. We have to see every चक्का को क्या कहते हैं इंग्लिश में? wheel. Wheel. So we have to see every wheel of the any vehicle. Yes sir. तो यहाँ पर जो है गुरु जो है भाग्य का कारक है, शनि कर्म का कारक है, वो डेफिनेटली देगा, मगर उसके हिसाब से हमको पहले बुध का भी स्थिति देखना पड़ेगा कि क्या बुध उस समय जो है हमको हमारा व्यवसाय के साथ जुड़ा है, हमारा नौकरी के साथ जुड़ा है, शुक्र क्या हमको पैसे दे रहा है। जब ये 4 फैक्टर मिलेंगे तब हम बोलेंगे कि डेफिनेटली जो है वो जब गुरु जो है मतलब गुरु के ऊपर से जब अपना शनि गुजरेगा डेफिनेटली वो हाई मतलब जो है राइज करेगा, या शनि के ऊपर से गुरु जाएगा वो डेफिनेटली जो है उसका काम में वृद्धि होगा। मगर ऐसा देखने से नहीं होगा। एक गरीब का कुंडली में शनि कितनी बार गुजरता है, एक भिखारी की कुंडली में आप देख लो शनि गुजरता है तो क्या उसको काम नहीं मिलता है ना। ठीक है, 2 पैसा उसका बढ़ गया वहां पर अलग बात है, जहां पर पहले 100 रुपया भीख मिलता था उसके जगह पे उसको 125 मिला। मगर हाईली मतलब जो है ना अगर अपन बोलेंगे अच्छा चेंज बोलेंगे तो अच्छा चेंज तब आएगा जब हम देखेंगे कि गुरु के साथ साथ शनि भी जो है अच्छी पोजीशन में चलना चाहिए और उसी वक्त बुध और शुक्र है वो भी अच्छी पोजीशन पे चलना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये कर्मा धर्माधिपति योग जो है वो रंग लाएगा। Sir, Kirit sir, can I ask one question on this chart which is opened here? One only. Sir, while Jupiter is retro here on 4th house and the Mars is here in the 10th house, and the person has Saturn Venus Dasa, how you will correlate? If you ask me, I am very basic and less than 1 year old in the Jyotish. According to me, it may be very weak period for him, Saturn Venus. But how you will decode it in Nadi just to correlate myself, sir? नहीं देखिए हमने क्या बोला आपको कि किसी भी इंसान का कुंडली में जब भी जो है आपको जो है हमने पहले बताया था, बेसिक में हमने क्या बताया कि कोई भी इंसान जब उसके पास सॉलिड पैसा है, ये इंसान के पास सॉलिड पैसा है, ये जो घर में रहता घर का कीमत 4 करोड़ रुपया है, 4 करोड़ के घर में रहता है और मर्सिडीज गाड़ी है उसके पास। यानी उसका देखो एक बात है, हमको पता नहीं क्या है, हम तो देखो उसके हिसाब से बताएंगे कि यहाँ पर जो है आप देखिए बुध जो है यहाँ पर बुध का घर में जो है अपना जो है बुध अपने घर में है, शनि जो है अपना मित्र की राशि में है और शुक्र भी अपने मित्र के साथ है। यानी क्या होगा बुध शुक्र और जो अपना शनि है तीनों मित्र की राशि में है और गुरु भाग्य का कारक है, उसका आशीर्वाद उसको मिला है। यानी गुरु क्या बोलता है कि मैं आपको जो है अपना जो है बिजनेस दूंगा, बुध अपना बिजनेस का कारक है, शनि बोलेगा मैं आपको कामकाज भी दूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे शुक्र जो है तो बोला पैसे भी दूंगा और गुरु जो है मंगल को देख रहा है और शनि के तीसरे भाव में है। तीसरा भाव जो है वो हमारा बाहुबल का है, पराक्रम का है, एफर्ट्स का है। यानी ये आदमी जो है वो डेयरिंग करेगा। तीसरे भाव में हम बोलते हैं कि मंगल डेयरिंग कराएगा। अब इसने करोड़ों रुपए जो है उसके अपने जो है अपने कारखाने में लगाए हैं। अब करोड़ों रुपए, हम करोड़ की बात नहीं कर रहे, करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है गुरु और गुरु वक्री होके जो है ना सूर्य को भी कनेक्शन कर रहा है और सूर्य यहाँ पर क्या है, सूर्य जो है हमने बोला था मान प्रतिष्ठा सम्मान का कारक है और वो देखो किसके राशि में है, कर्क राशि में है और वृश्चिक राशि में राहु है। राहु उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी क्या होगा कि इसका नाम फेम, उसको प्रॉस्पेरिटी और गुरु का आशीर्वाद भी मिला। गुरु का आशीर्वाद जो है बुध शुक्र और उसको भी मिला। तो यहाँ पर जो है कभी कभी हम देखते हैं कि दशा जो है हमको फेल दिखती है मगर नाड़ी के कुछ योग जो है वो कमाल कर जाते हैं। आया समझ में आपको? प्रवीण जी, यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये इंसान के पास पैसा है मगर पैसा जो है सर आई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यू आर ट्राइंग बट ओके आई विल मे हैव नॉट गेट। सर मेरे को मिल नहीं पा रहा बट कोई बात नहीं, धन्यवाद साहब। हाँ सर एक बार आप रिपीट कर दीजिए जो आपने मुझे बताया था, मैं उसको इंग्लिश में बता देता हूँ सबको। नहीं, यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो इंसान है ये इंसान कुंडली में जो है गुरु वक्री है, बराबर। गुरु जो है गुरु का सीधा हमारा जो है हम जो है त्रिकोण में देखते हैं तो त्रिकोण में हम देखेंगे तो क्या होगा कि जो है यहाँ पर गुरु बुध सबसे पहले शुक्र के संबंध बना रहा है, उसके बाद जो है अपना शनि और उसके बाद बुध है। अब ये तीनों जो है यहाँ पर क्या है, शनि जो है कर्म कारक है, बराबर है, बुध जो है बिजनेस का कारक है और शुक्र जो है भाग्य का कारक है और भाग्य का कारक का दृष्टि जो है अपना उन तीनों पे है। यानी भाग्य उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये वेल प्लेस्ड है। देखो यहाँ पर है,
यहाँ पर ये जो दे रहा है वो वेल प्लेस है। बुध जो अपनी राशि में बैठा है, शनि मित्र राशि में बैठा है और शुक्र भी मित्र राशि में बैठा है, तो ये वेल प्लेस है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे इंसान के पास एक बार जो है बहुत अच्छा सॉलिड पैसा आएगा या इसके पास सॉलिड पैसा होगा। सर वीनस किस चीज का कारक बताया आपने? धंधे का? शुक्र पैसे का कारक है। पैसे का। So actually sir is saying there is Jupiter in the 4th house. This is retro. The degree is 23 degree approximate, and the near degree with the Jupiter is actually the Venus, and then Mercury, and then Saturn. So Saturn is the karaka of karma, Venus is the karaka of money, and the Mercury is karaka of business. So actually sir want to say that this is the great position, this is the auspicious position for the person. Even once in a lifetime the person will get huge money through the work, through the business, in the life because of this position of the planets. ठीक है सर? बराबर है। और यहाँ पर जो है सूर्य जो है मान सम्मान का कारक है, वो भी वेल प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य जो है, सूर्य के सेकंड हाउस में मंगल है, यानी सूर्य राजा है, उसके आगे कमांडर है। Okay, so sir is saying actually there is sun is in this kundli, sun is also very auspicious because sun is sitting in the 9th house, and forward in the forward house of the sun there is Mars, who is the commander, and the sun is the king. So this is also auspicious situations of the planets. और सर और वक्री गुरु है, वो सूर्य को भी देख रहा है। And also this retro Jupiter is aspecting the sun, because the thing is that here the retro Jupiter will go into the 3rd house and will aspect to the 9th house. Am I right sir? हाँ, और राहु जो है सूर्य के साथ अपना जुड़ा हुआ है, और सूर्य जो है वो यश कीर्ति प्रतिष्ठा देता है। So Rahu is connected to the sun, and sun used to give the respect, honor, and the fame. तो इनका जो है, इनका कंपनी जो है वो उनका विदेश में भी नाम है। That's why the company of this person having the fame in the foreign countries also. यहाँ पर तो नाम है, मतलब नामी कंपनियों के साथ इनका बिजनेस चलता है, और फॉरेन में भी नामी कंपनियों के साथ इनका माल वहां पर जाता है। Okay, so the person is working with the foreign company also, with the Indians company, and he is working very well mannered. सर आगे नहीं, जो बताना था बता दिया ना। अब क्वेश्चन हो तो बात करते हैं। Okay, is there any question you can ask? Manish ji, you can ask. मनीष जी, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। So just one question. In the Nadi, you are taking 159 relationship and also 7 relationship. Will you also consider the aspect of Saturn like 3 and 10? नहीं समझा, नहीं आप क्या बोल रहे हैं? सर नाड़ी में आप 1, 5, 9 का रिलेशनशिप ले रहे हैं, 1, 5, 7 और 9 का रिलेशनशिप ले रहे हैं, ठीक बोल रहा हूँ? हाँ हेलो, हाँ बोलिए। 1, 5, 9 और 7 का रिलेशनशिप आप ले रहे हैं, आप प्लैनेट का भी एस्पेक्ट लेंगे क्या? जैसे सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट होता है सर, और 10th एस्पेक्ट भी होता है 7th के अलावा, नहीं देखो लेंगे क्या? तो जो है, मैं तो अपने क्लास में बोलता हूँ अपने स्टूडेंटों को कि कोई भी मन्नत मत लो, आप देखना है तो देखो ना, उसमें हम थोड़ी मना कर रहे हैं। नहीं, आप ले रहे हो क्या? देखो हम जो है हम ले भी सकते हैं, बराबर है। हमारा तो देखो, हमारा काम है क्लाइंट जो आता है उससे हमारा एक्यूरेसी बढ़े, बराबर है। हम कई विद्या क्यों सीखते हैं कि हमारा जो प्रेडिक्शन का एक्यूरेसी चले और भगवान की दया से हमको रोजी रोटी मिले, बराबर है। ये हमारा काम है। तो अगर जब हम पराशरी यूज करेंगे तो उसको भी पकड़ेंगे, जब हम नाड़ी करेंगे तो उसको पकड़ेंगे, मगर हम बोलते कि जब एक चीज पकड़ेंगे तो दूसरी चीज को फॉलो नहीं करेंगे। जब हम नाड़ी को करेंगे तो केवल नाड़ी को करेंगे, जब हम पराशरी को करेंगे तो फिर हम उसको वहां पर दृष्टि भी लेंगे, युति भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। बस सर एक्चुअली मुझे नाड़ी का ज्यादा नॉलेज नहीं है, हाँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि नाड़ी में सिर्फ 1, 5, 9 और 7 लेना है, राइट?
नहीं, यहाँ पर जो है देखो एक बात है ना, एक जो है पाराशरी का योग है कि 12वें भाव में शुक्र जो है वो यूतो ना दृष्टो बहुत अच्छा होता है, बराबर है, सबको मालूम है। मगर एक बात देखो, जिंदगी में, पूरा जिंदगी में शुक्र कहीं भी आपको अकेला नहीं मिलेगा। देखो लोग जो है ना, लोग यूज करते मगर भूल जाते हैं। अभी यहाँ पर देखो शुक्र जब 12वें भाव में बैठेगा, अगर कोई ग्रह वहां पर दूसरे भाव में होगा तो उससे क्या होगा, बिया बारू का संबंध बनेगा, योग बनेगा। अगर शुक्र 12वें भाव में है, उसके तीसरे अपना जो है दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह रहेगा तो उसका त्रिएकादश योग बनेगा। चौथे मतलब तीसरे भाव में अगर कोई ग्रह रहेगा, 12वें भाव में शुक्र है तो उसका केंद्र योग बनेगा। शुक्र अपना जो 12वें भाव में है और अपना जो चौथे भाव में कोई ग्रह रहेगा तो उसका नवपंचम योग बनेगा। उसी तरह से अपना 5वें भाव में अपना जो 12वें भाव में शुक्र, 5वें भाव में कोई रहेगा तो षडाष्टक योग बनेगा। उसी तरह से शुक्र 12वें भाव में, 7वें भाव में अपना कोई ग्रह है, समसप्त योग बनेगा। और लास्ट में जो है यहाँ पर अपना शुक्र 12वें भाव में और 7वें भाव में अगर कोई ग्रह है तो षडाष्टक योग बनेगा। आप बोलो कहां पर शुक्र अकेला मिला आपको? आप बताइए, कोई बताए, कोई माइकलाल बताएगा शुक्र अकेला कैसा है? कहीं मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था। मेरा क्वेश्चन था कि रिलेशनशिप के लिए 1, 5, 9, 7 नहीं, रिलेशन देखेंगे। देखो हमारा एक सूत्र है जो मैंने, शायद आपने मेरा वीडियो देखा तो मैंने बताया था कि हमारा नाड़ी का एक सिंपल सा सूत्र मैंने दिया है कि आप कोई भी आप कुंडली देखते हो तो सबसे पहले ग्रह को देखो, और एक ही सूत्र है, वो चाहे पाराशरी में लगाओ, चाहे आप नाड़ी में लगाओ, चाहे कौन सी भी विद्या में लगाओ, आपको फिट बैठेगा। और वो सूत्र है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं वो कौन। अब वो जो है अपना शनि, जब हम मानते हैं किसी का हम कामकाज का देखते हैं तो शनि को देखेंगे, शनि क्या है, कहां से आया है और कहां जाएगा, बरोबर है। अब जब वो कहां से आया तो हम क्या बोलेंगे, उसका पास्ट बोलेंगे, कहां है वो हम फ्यूचर बोलेंगे, मतलब अपना वर्तमान बोलेंगे, और कहां जाएगा तो हम उसको बोलेंगे मतलब जो है फ्यूचर बताएंगे। तो हमारा तीनों भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों वहां पर आ जाता है। सॉरी सर, थैंक यू, मगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। रिलेशनशिप के लिए 1, 5 रिलेशनशिप या कुछ और भी लेना है, बस मेरा ऐसा ही क्वेश्चन था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप मेरी बात को समझे नहीं, कि देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि शनि के दूसरे भाव में सूर्य है, बराबर है। शनि के दूसरे भाव में सूर्य है, राहु जो है, राहु का दृष्टि उसके ऊपर है और गुरु वक्री योग के कर रहा है। यानी हम क्या बोलेंगे कि ये जो इंसान काम करेगा, सूर्य ब्रांड है, बराबर है, राहु उसको एक्सपांड कर रहा है, गुरु उसका भाग्य का कारक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं पकड़ेंगे, देखो हमने नहीं मन्नत लिया है कि हम जो है ना 1, 7, 5 को ही देखेंगे, या हम जो है एक अपना जो उसको देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या बनाया कि शनि जो है, शनि के दूसरे भाव में सूर्य है, सूर्य यहाँ पर कर्क राशि में है, अपने राहु जो है दुश्मन की राशि में है, तो राहु जो है सूर्य का सत्यानाश नहीं करेगा, और गुरु जो है उसको ब्लेसिंग दे रहा है, अपना वक्री होकर उसको ब्लेसिंग दे रहा है। या हम ये बोलेंगे कि गुरु जो है, गुरु का दृष्टि सूर्य के पिछले भाव में भी है और गुरु का दृष्टि सूर्य के आगे के भाव में भी है, यानी सूर्य जो है वो प्रॉस्पेरिटी का कारक है और उसको गुरु का ब्लेसिंग है। तो क्या बोलेंगे कि ये इंसान जो है, ये इंसान जो भी काम करेगा उसको नाम, प्रतिष्ठा, यश मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। आया बात मेरा समझ में आपको? यस सर, थैंक यू। हम भाव को भी कंसीडर करेंगे, मगर शनि के दूसरे भाव से करेंगे। हमने योग क्या बनाया, शनि के दूसरे भाव में प्रॉस्पेरिटी है, बराबर है। तो हम शनि को नहीं देखेंगे, शनि को देखेंगे। शनि से जब हम योग बनाएंगे तो क्या बोलेंगे कि प्रॉस्पेरिटी है, ये इंसान प्रॉस्पर, मतलब अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी पाएगा। प्रोस्पेरिटी सर आप शनि के दूसरे भाव से देखते हैं, मतलब शुक्र के? देखो ये काम कर रहा है ना, देखो हमने क्या बताया था, ये इंसान का जो है ना, मतलब सूर्य आगे है, सूर्य क्या है, नाम प्रतिष्ठा है, नाम प्रतिष्ठा आगे आगे चल रहा है और काम काज उसका पीछे पीछे चल रहा है। यानी क्या होगा कि ये आदमी का ब्रांड बिक रहा है ना। देखो हम जो है, हम पहले देखते थे कि भी राजकुमार का पिक्चर आता था या नाना पाटेकर का पिक्चर आता था, तो हम क्या होता था, नाना पाटेकर का पिक्चर है तो देखने जाते थे, उसका डायलॉग डिलीवरी देखते थे। पिक्चर घटिया उसे कोई लेना देना नहीं, मगर नाना का जो डायलॉग है, डायलॉग डिलीवरी हमको पसंद आता है, तो लोग नाना का डायलॉग सुनने के लिए पिक्चर में जाते थे। तो वहां पर क्या हुआ, नाना का शक्ल तो बेकार है, मगर नाना का जो है, नाना का स्पीच बहुत सॉलिड है, नाना का डायलॉग डिलीवरी बहुत सॉलिड है। तो क्यों गए हम नाना पाटेकर के पिक्चर को क्यों गए, उसका वॉइस डिलीवरी देखने के लिए गए, उसको देखने के लिए नहीं गए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि सूर्य के दूसरे, मतलब शनि के दूसरे भाव में सूर्य है, तो सूर्य प्रॉस्पेरिटी का कारक है और राहु उसको एक्सपांड कर रहा है। उसका अकेला जो है, गुजरात में उसका नाम नहीं है, उसका नाम दिल्ली में भी है, उसका नाम मद्रास में भी है, उसका नाम अपना बॉम्बे में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उसका नाम विदेश में भी है।
और गुरु उसको वक्री होकर आशीर्वाद दे रहा है। तो हम जब योग बनाएंगे तो हमने बोला ना, अभी यहाँ पर बोलेंगे, कोई इंसान को बोलेगा कि शनि जो है, शनि के दूसरे भाव में सूर्य है, बिया बारू का योग बताओ, कोई माइकालाल नहीं बताएगा कि ये ऐसा। अब नाड़ी के हिसाब से बताएंगे, समझ आएगा ये चीज मिलेगा। कि आप किसी को भी आप किताब लिख लो, शनि के दूसरे भाव में सूर्य का क्या फल, तो बोलेगा वैसा है, तैसा वैसा है। कोई माइकालाल नहीं बोलेगा छाती ठोक के ये आदमी को प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हमने भाव को भी कंसीडर करा, हमने दृष्टि को भी। देखो हमने पहले बताया कि गुरु का हमने दृष्टि लिया आपका, आपके हिसाब से जो एक अपना जो है अपना 1-5-9 का जो हमारा दृष्टि है हमने लिया, हमने अपना गुरु का दृष्टि 7वें भाव में लिया, क्योंकि वहां पर मंगल बैठा है, शनि के तीसरे भाव में बैठा है। शनि का तीसरा भाव क्या है? हमारा जो है, हमारा मतलब बाहुबल है, हमारा डेयरिंग है, हमारा पराक्रम है, और मंगल पराक्रम का कारक है। ये इंसान ने करोड़ों रुपए उसके लगाए ना अपने उसमें, अपने कामकाज में। आज मेरे को बोले तो मैं 2 लाख रुपए भी नहीं लगाऊं, क्योंकि मैं डरपोक इंसान हूं ना, मेरा मंगल खराब है। मैं रात को 12 बजे अकेला नहीं निकल सकता हूं, क्योंकि मेरा मंगल खराब है ना, मुझे डर लगता है ना। मगर वही मंगल होगा अगर ये इंसान है रात को 2 बजे घूमता है, कि उसको डर नहीं ना, बोले ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाला मार डालेगा और क्या करेगा, लूट लेगा और क्या करेगा। 2 ही चीज है ना, उसमें डर नहीं है ना। आप समझे? समझ गया सर, थैंक यू। और किसी को देखिए। नहीं सर, आई थिंक नो क्वेश्चंस नाउ। तो ये जो है ये जो मेरा अपना जो है जो मेरा स्पीच था उसको मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। और फिर से एक बार मैं जो है सप्तऋषि का जो है शुक्रिया अदा करूंगा, अमित सर का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आपको शायद कुछ ज्ञान मिले, जिनको अच्छा लगे वो ले सकते हैं और उसको आप अनुभव करें। ये मेरा अनुभव है, हमारा अनुभव है, हमारे ऋषियों का अनुभव है, आरजी राव का अनुभव है। आप उसको अपनाइए, और अपनाते हैं तो आपका जो प्रेडिक्शन जो है वो आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके ऊपर है आप उसको कैसे अप्लाई करते हो। शुक्रिया सभी का। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखते हैं अब आगे किसका लेक्चर है वो। थैंक यू सर। सर अमित सर, थैंक यू नीरज, अभी नेक्स्ट लेक्चर विनोद जी लेंगे। अच्छा ठीक। विनोद जी यहाँ पर हैं तो वो